Today we will discuss about the next one topic of chapter number 8, which is the determination of equilibrium output or determination of equilibrium GDP, we can say. In the previous topic, we have studied about the concept of the short run as well as the concept of the equilibrium output. Concept of the short run में मैंने आपको बताया था that it refers to that period of time in which the level of output in the economy can be determined only using the level of the employment in the economy. कि एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड है, technology is fixed there, and the second one factor, the employment, is the variable factor, and technology is assumed to be constant here, that there cannot be any change in the technology. So only if the output is to be increased in the economy, that can be done only with the help of the employment, level of employment in the economy. So now we will discuss about that how this level of equilibrium output can be obtained with the help of using some technique, कि हम उस level को कैसे determine कर सकते हैं. Okay, so simply there are the two approaches related to it in order to determine the equilibrium output, which is the first one approach is there, that is the aggregate demand and aggregate supply, and second one approach is there, that is the saving and investment approach will be there. So firstly I will just discuss about the first one approach here, which is the ADAS approach and equilibrium GDP. ADAS approach, according to this approach, देखो simply क्या होगा as per the name indication कि जो हमारा equilibrium output है, जो हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी है, वो कहाँ पर अचीव की जाएगी? एज पर द नेम इंडिकेशन इट कैन बी अचीव्ड एट द लेवल वेयर द एडी इज इक्वल टू एएस, एंड वी नो वेरी वेल कि एडीएस क्या होता है. एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है कि एक ओवरऑल प्रोड्यूसर्स ने कितना प्लान किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, कि वो कितना ओवरऑल प्रोड्यूस करेंगे. दैट इज नॉट मेनली रिलेटेड टू द प्राइस. एग्रीगेट सप्लाई जो है वो प्राइस से रिलेट नहीं है, वो मेनली किससे रिलेट है? द इनकम. तो अगर एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द इनकम ऑफ द पीपल. और यहाँ पर मेनली क्या किया गया है, हमारी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट कंसीडर की गई है, कि अगर उसे चेंज किया जाता है, मींस द इफ द सप्लाई विल बी चेंज्ड, दैट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ द aggregate demand. No changes will be there related to the prices. We can say कि वहां पर मेनली क्या आ जाएगा कि अगर एग्रीगेट सप्लाई में कुछ चेंजेस आते हैं तो दैट कैन नॉट बी डन और दैट विल नॉट हैपन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइजेस. एग्रीगेट सप्लाई के अंदर कोई भी प्राइजेस किसी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा. तो अगर एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा, दैट विल बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा हो जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई को भी बढ़ाया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग, और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई को भी कम किया जा सकता है. सो हेयर सिंपली द एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन विल बी कंसिडर्ड लाइक दिस, that on the x-axis there will be the income, on the y-axis there will be the aggregate supply, and it will be moved in the angle of 45 degree. This will be equivalent to the income. कि अगर एग्रीगेट सप्लाई, अगर इनकम जीरो है तो एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है. अगर इनकम बढ़ के 30 है, इट मींस एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो सिमिलर. If aggregate supply is 50, then the income is also 50. So both of these just coincide each other. After that, the second one component, which is the aggregate demand. We have studied about it also already. Aggregate demand refers to the desired or the planned expenditure. कि एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर जो हमारा
प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, दैट इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट स्टडी किए थे इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो कंसीडर किया जाएगा इस अप्रोच के अंदर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम, दैट विल बी ओनली द टू कंपोनेंट्स ऑफ इट, which is the desired consumption expenditure and desired investment expenditure। अब यहाँ पर मेनली देखो, ध्यान से सुनना, that desired investment expenditure is assumed to be autonomous। autonomous means कि एक इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम एक फिक्सिंग लेवल है और वो इनकम से रिलेट नहीं करेगा। मीन्स अगर हम जनरल बात करें, जैसे कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, देर इज एन ऑटोनोमियस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि अगर लोगों की इनकम जीरो भी होगी तब भी वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा ही होगा। एज लाइक सिमिलर देर इज ऑल्सो द सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज द ऑटोनोमियस, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को फिक्स कंसीडर कर लिया गया है, दैट इज द कांस्टेंट, कि इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी में है ही है। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, कि उन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज हो रही है। बट the investment expenditure is not based upon the income, it is constant, it is autonomous, means if there is a minimum level of investment expenditure is existing in the economy, see like this is our income, this is our expenditure on y axis, and this is 20 is the autonomous इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि इनकम का लेवल कितना भी क्यों ना हो जाए, हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, 20 रहेगा ही रहेगा। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन को हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है कि ये कैसे बिहेव करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बिहेव लाइक दिस, दैट द इनकम इज फ्रॉम 0 to forward increasing mode in the level of the 45-degree angle, and consumption there is always the minimum level of consumption 30 से start हो रही है, then it is going to be equal to the income, then it is decreasing from the income। तो कंजम्पशन का हमारा यही बिहेवियर रहता है कि जैसे जैसे इनकम, फर्स्टली देर इज एन ऑटोनोमियस कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाती है, एक लेवल के बाद इनकम और कंजम्पशन क्या करते हैं, बराबर हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट पॉइंट वी कैन से यहाँ तक वो इंक्रीज हो रही है, एंड आफ्टर दैट पॉइंट इट बिकम इक्वल, एंड आफ्टर दैट पॉइंट इट जस्ट गोज less than the income। So this is the behavior of the consumption। As per these things we can study about the concept of aggregate demand। अब हमें पता है कि aggregate demand किसके बराबर है, consumption plus investment expenditure। So here we can say that कि हमारी इनकम है सिंपल 20 के गैप से इंक्रीज हो रही है, हमारी कंजम्पशन उस बिहेवियर में आ रही है मिनिमम, देन इक्वल, एंड आफ्टर दैट लेस देन इनकम, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज परमानेंटली कांस्टेंट। सो सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। सो आवर एग्रीगेट डिमांड विल बिहेव लाइक दिस, here we can say our aggregate demand is behaving like this is the income, this is the consumption, and aggregate demand is consumption plus investment expenditure, both of these, this will goes in the parallel of the consumption because of there is a permanent increase in the investment, the constant increase in the investment expenditure over there, so aggregate demand will be parallel to the consumption line। After that now here we can say इनकम है वो किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, एग्रीगेट डिमांड के। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसेप्ट स्टडी करेंगे कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम
कहाँ डिटरमाइंड होगा? जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। नाउ वी विल डिस्कस द मेन वन अप्रोच कि इक्विलिब्रियम इनकम कैसे डिटरमाइंड होता है। वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट with related to the tabular representation and diagrammatically representation. So we know very well, we have already studied that where the aggregate supply is equal to the aggregate demand, that situation will be termed as the equilibrium output. Here is the income in the gap of 20-20-20. Aggregate demand is equal to the consumption and investment will always be constant, no change. Consumption is related to the income, but there will be the minimum level of consumption, then it is increasing, then equal to income, after that it will be less than income. The total of both of C plus I will be equivalent to the aggregate demand in the economy. We can say the C plus I will be equivalent to the aggregate demand. तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेयर इज द इक्विलिब्रियम, हमारी इनकम और हमारी एडी 100 के लेवल पे एक दूसरे के बराबर हैं. दिस इज नोन एज द लेवल ऑफ द इक्विलिब्रियम आउटपुट, राइट? दिस इज नोन एज द लेवल ऑफ द इक्विलिब्रियम आउटपुट और द इक्विलिब्रियम जीडीपी इन द इकोनॉमी. कि यहाँ पर क्या है? प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड के बराबर है. जरूरी नहीं है कि ये लेवल जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही अचीव हो, मे बी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो और ये इक्विलिब्रियम लेवल हमारा एग्जिस्ट हो जाए. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस इक्विलिब्रियम लेवल यूजिंग द diagram presentation. This is the simple income in a 45-degree angle. This is the aggregate demand started from 50, and where both of these are equal to each other, that is the level of 100. It will be termed as the level of equilibrium. Level of equilibrium. So this was the concept of ADAS approach, where equilibrium will stuck at the level when the AD is equivalent to the aggregate supply. तो अब यहाँ पर सिचुएशन आ जाती है कि अगर इकोनॉमी में ऐसा हो कि हमारी एडी जो है वो एएस से ज्यादा है या हमारी एडी जो है वो एएस से कम है, तो एज्यूम करो सिंपल सी सिचुएशन कि अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड से, तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा गई इकोनॉमी में, डिमांड से ज्यादा एक्सेस में आ गई. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन एज ए रिजल्ट कि कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो अनसोल्ड रह जाएंगे. नो डाउट, अगर सप्लाई ज्यादा है तो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास आ जाएगा. अब अनसोल्ड स्टॉक अगर बच जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? अगले साल वो अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको अपना पुराना स्टॉक भी सेल करना है. नो डाउट, अगर हमारे पास पहले साल की यूनिट बच जाती है तो हम अगले साल प्रोडक्शन कम कर देंगे. तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा? हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी. इट मींस एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी जाएगी और इक्विलिब्रियम अगेन रिस्टोर कर लिया जाएगा जैसे ही आउटपुट में चेंजेस आएंगे. आफ्टर दैट द सेकेंड वन सिचुएशन कैन बी अराइज देयर, which is the if the situation is there that the aggregate demand is greater than the aggregate supply. अब अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा आ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा बताओ. देखो, एग्रीगेट सप्लाई जितनी है उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. अब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई. इट मींस इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स की सप्लाई थी डिमांड के अकॉर्डिंग, दैट इज लेस नाउ. supply of goods and services in the economy tend to be less than their demand. तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आई कि प्रोड्यूसर्स का जो प्रेजेंट स्टॉक था वो सेल हो गया और प्रोड्यूसर्स जो थे अब वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे. अगर वो उस डिमांड को पूरा कर पाते तो वो प्रॉफिट्स कमा सकते थे ज्यादा. तो यहाँ पर उनको लॉस बियर करना पड़ेगा किसका? अनफुलफिल्ड डिमांड का. अब फिर से डिजायर्ड स्टॉक लाने के लिए और अनफुलफिलमेंट डिमांड के लॉस को
क्रॉस करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे। प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाएगी, एडी के। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रिस्टोर कर लिया जाएगा विद द चेंज इन द आउटपुट, विद द चेंज इन द इनकम।